every step I take, I'm stronger through it all. You think you know defeat, but I'm here to survive. With every heartbeat, I'm keeping hope alive. I see the light breaking through the dark. In every scar there's a brand new spark. We're warriors made of fire and grace, rising together in this endless race. We are the fighters, we are the brave. In the face of fear we stand unafraid. Through the tears and pain we rise again. Together we'll break these chains. We are the fighters, we are the brave. We are the brave. The mirror shows a journey etched in every line, but beauty's in the battle through the toughest times. No, I won't let go. No, I won't give in. On the stage and recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर करने के लिए दावत देते हैं इंशा सलमान को। Assalamu alaikum everyone. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं। एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है। और मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो।
Awareness Symposium 2025. Today, we gather here not only as students and professionals, but as voices of unity, awareness, and compassion to stand together for a cause that truly matters. We warmly welcome our Honorable Dean, Professor Dr. Khalid Hussain, and our respected Head of Department, Dr. Kashif Parshad. Unfortunately, they are not here with us today. It is a great honor to welcome our worthy keynote guest speaker, Professor Dr. Ahmad Ijaz Masood, Dr. Hafsa Ahmad, and dietitian Ms. Afreen Kareem. Your precious presence added immense value and purpose to today's event. We are truly honored to extend our warm welcome to our distinguished guest of honor, Ms. Aisha Anwar, Dr. Aisha Mubashir, Dr. Amla Shabir, Ms. Mariha, Dr. Sidra Shah, and Dr. Sana Ashraf. Ms. Hira Tanveer and Mr. Muhammad Suhail from Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital and Mr. Masroor Lodi from Pink Ribbon, Pakistan. We sincerely welcome Dr. Dishan Akbar, the esteemed founder and veteran of UOL Imperial Pharmaceutical Society, and Dr. Muhammad Afizah Mirza, our respected president. We are grateful for their inspiring leadership and unwavering support. Lastly, a warm welcome to our collaborating society, the student-focused UOL chapter and the UOL Society of Health and Nutritional Awareness for joining hands to make this event possible. Let's move forward together in the spirit of awareness and unity, hoping this seminar inspires learning, understanding, and positive change. I want to warmly welcome you all here once again. Thank you. Thank you so much, Muniba, for a warm and heartfelt welcome note. Now, it's time to pass the baton to our next hosting pair, Ms. Talia Shameen and Ms. Hijab Sahra. A huge round of applause for them. और मुहित जी हैं कैंसर सोसाइटी मुल्तान के वालिय रुकन और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ निश्चित अस्पताल मुल्तान में कैंसर इंस्टीट्यूट के कयाम में आपका किरदार मिसाली रहा है। आपकी खिदमत और इंसानी दोस्ती आपकी शख्सियत को एक रोशन मिसाल बनाती है। तो आइए मिलकर जोरदार तालियों में इस्तकबाल करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज मसूद साहब का। मैं पाकिस्तानी हूँ और उर्दू में बात करूँगा। यहाँ कोई फॉरनर नहीं है, इसके लिए मुझे इंग्लिश में बात करनी है। मेरा ख्याल है सब उर्दू अच्छी तरह से। कैंसर क्या है? एक खौफ जो हर बंदे के ज़हन में है कि पता नहीं क्या होगा। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि कितनों लोगों के घरों में कैंसर है, पहले तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर पे बात में आऊंगा, पहले कैंसर क्या है आपको कैंसर का तो पता होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे जिनके घरों में कैंसर है, किसी ना किसी तरीके कोई रिलेशन, गिनती के चंद। और कितने लोग हैं जिनके घरों में ब्लड प्रेशर हर घर में। कितने लोग हैं जिनके घरों में डायबिटीज है हर घर में। उससे नहीं हम घबराते, वो तो कहते ठीक है जी कोई बात। जबकि मेरे ख्याल में कैंसर से ज्यादा खौफनाक चीज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। आप सारे फार्मासिस्ट हैं,
साइंस पढ़ी हुई है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इनके असरात क्या है हमारी बॉडी और इनके क्या नुकसान हो सकते हैं और होते हैं। हम उसकी परवाह नहीं करते। हमें एक खौफ है कि कैंसर, मैं ये कहता हूँ इट्स मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड। जहां कैंसर का लफ्ज आएगा आप सब खौफजदा होंगे और कहेंगे पता नहीं अब क्या होगा। ये लफ्ज कहां से आया? ये लफ्ज आया क्रैच से, ग्रीक वर्ड है कैंकर। और ये देखिए ये कैंसर सेल है, इसकी मुशाबहत की है क्रैच। तो ये लफ्ज कैंकर से आया। आपने बहुत अच्छा किया इसी जगह पे रखा है, गंदा पता गिरने में आसानी है। So cancer is life's greatest challenge, difficult to life itself. मैं इंटरैक्टिव बात करूंगा, आप उससे जहां को सवाल करना चाहें कर सकते हैं, ताकि मैं उसी वक्त उसका जवाब दूं। आप कैंसर के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं कि क्या खौफ है कैंसर के? एनीबॉडी? डेथ और परमानेंट क्यों नहीं है? डायबिटीज का है, ब्लड प्रेशर का है, तो फिर उससे क्यों नहीं करते? एक बात मैं बता दूं, कैंसर का 100% क्योर है। आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपके पास गाड़ियां होंगी, किसी के पास 2030 मॉडल है, किसी के पास 2015 मॉडल है, किसी के पास 2010 मॉडल है, किसी के पास 2025 मॉडल है। आप उन गाड़ियों के रेगुलर मोबिल ऑयल, फिल्टर, रेडिएटर में पानी, टायरों में हवा, पेट्रोल चेक करते हैं, क्योंकि आपका सफर खराब, आप डिफेंस से यहां आ रहे हैं, रास्ते में गाड़ी खराब, रोक ना जाए, ठीक है? मगर कभी आपने सुना इन जो 2000 से पहले के आप सारे लोग हैं पैदा हुए, कभी अपने बारे में सोचें, कभी अपने टेस्ट करवाएं। आप ये देखें, आप गाड़ी के टेस्ट क्यों करवाते हैं? क्योंकि किया वाले आपको एक मैनुअल देते हैं, टोयोटा वाले आप मैनुअल देते हैं कि महीने बाद ये करना है, 2 महीने बाद ये करना है, 1000 किलोमीटर बाद देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप पैदा हुए ना, तो अल्लाह ताला ने आपको मैनुअल नहीं दिया कि आपने क्या, और उस मैनुअल के ना देने का नतीजा क्या है कि आपको पता ही नहीं आपने क्या किया। आप मुझे, हम डॉक्टर्स हैं, हम नर्सिंग स्टेशन में बैठे होते हैं, हर एक को कहते हैं इसका ब्लड प्रेशर चेक करो, इसकी शुगर टेस्ट करो, इसके इलेक्ट्रोलाइट चेक करो, इसका ब्लड टेस्ट। अपना कभी नहीं चेक करते, हम अपना नहीं चेक करते। हम क्या कहते हैं? ऑल इज वेल। और क्या कहते हैं कि अगर चेक करें कुछ निकल ना आए, फिर कुछ होगा तो निकलेगा, जब निकलेगा तो ठीक हो, इलाज हो जाएगा। वी डिले आवर डिजीज, आप उस चीज को सोचते नहीं। कैंसर भी इस तरह, मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर इट टेक्स 7 to 8 years कि ये पैल्पेबल हो, अपीयर हो, जाहिर हो, आपको पता चले। 7-8 साल पहले शुरू होता है, एक सेल 2 में, 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में, इस तरह डिवाइड करते हैं। और डबलिंग टाइम इसका 6 to 8 days, राइट? तो 6 से 8 दिन में एक सेल 2 में बदलेगा, उसके बाद अनदर 8 दिन 2-4 में बदलेगा। The size of a cell is in microns. जब तक इस पैल्पेबल हो 6-7 साल गुजर जाते, और वो 6-7 सालों में वो कहां गया, you never know। तो हम कहते रहते हैं, मैं पॉकेट लाया हूं, कोशिश की है कि मैं आपने तकसीम कर दूं, इनमें पढ़े। इसीलिए क्यों कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? इसीलिए ताकि जल्दी डिटेक्ट हो। आप उसके लिए करते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा हाउ टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड व्हेन टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अब ये पढ़े, एवरी कैंसर पेशेंट हैज अ ब्लैक बॉक्स और इमोशनल टर्मोइल दैट reverberates in their mind and their families। जब किसी घर में कैंसर हो जाए, हर बंदा खौफजदा हो जाता है, पता नहीं अब क्या, पता नहीं क्या। हमें
क्या है, हम डिले करते हैं। जब आप एक दूसरे को तकलीफ बताएंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या है। हम तकलीफ नहीं बताते, मरीज आएगा, उसके बच्चे आएंगे, पहले आ जाएंगे, हमारी अम्मा को ना पता चलेगा। और अम्मा आएगी, उसे एग्जामिन करेंगे, वो आएगी, वो तो मेरे पुत्रा ना पता चले की हो, पता दोनों को होता है, बस कम्युनिकेशन क्या है, हमें उन्हें बताना है। आप कैंसर के मरीज को बताएं उसे कैंसर है। जब डायबिटिक पेशेंट को आप नहीं बताएंगे उसे डायबिटीज है, वो चीनी छोड़ेगा नेवर। उसके लिए नमक जहर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह आपको कैंसर के मरीज को बताना है उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसे कैसे इलाज होगा। जब तक नहीं बताएंगे वो उसी तरह होगा और डिले होगा और कैंसर भी होगा। ये नॉलेज, होप एंड इंस्पिरेशन कैन लीड कैंसर। आपको प्रॉपर चीज पता हो। अब होता क्या है, आपको पता है कैंसर के मरीजों को आपने एक चीज भी कही थी कि रूल्स ऑफ द लॉ के बाहर पूरे ना निकले, 15 मिनट गए। एनीवे, अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है कैंसर का, आप बताएं परहेज आपसे पूछते हैं तो क्या परहेज होगा बताएंगे? कैंसर के मरीज के लिए क्या परहेज है? एनीबॉडी? और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे परहेज करना है, खवातीन से परहेज। ये जो मौलेदार औरतें होती है ना, आगे कहती हैं टीके ना लगवाना, बाल गिर जाएंगे, उल्टियां आएंगी, बदली होगी, ऑपरेशन भी ना करवाना, दवा ना लगवाना, शुआएं तो लगवानी नहीं है, तो फिर इलाज क्या करना है? एक खातून थी मेरे पास, उसके एक इसी तरह बुर्का पहने औरत आई, उसके घर में जाके ये सब कुछ कहा और उसके बाद बुर्का पहना चली गई। अब वो लड़की खातून के ज़हन में आ गया पता नहीं अब क्या हो, उसके घर वालों ने उसका जबरदस्ती इलाज करवा दिया, इलाज हो गया, इलाज हो गया, ठीक हो गई, मगर उसके ज़हन में ये बात थी अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। 5-6 साल बाद वो बुर्के वाली खातून फिर आई और उसे देखे तू बच गई, खुश होने के बजाय अफसोस कर रही। तो एक ही परहेज है, खवातीन से परहेज, आप बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, कुछ मर्द भी खातून की तरफ, ये भी ज़हन रखते। According to patient, it's a monster in a dark forest, torture in mind due to disease in bodies. According to doctors, group of more than 150 diseases having different methods of diagnosis, staging, treatment, and outcome has psychological effects on patients and their families. Survival from certain cancers has become much more common. And according to oncologists, must provide a roadmap that makes a terrifying cancer journey much less so. हमें मरीज को खौफजदा नहीं करना, हमने उसे गाइड करना है, क्या ये इलाज करवाएंगे तो ये होगा, ये इलाज करवाएंगे तो ये होगा, ये इलाज करवाएंगे तो ये इसके लिए बेस्ट वे। और उसी के लिए मैं आज डॉक्टर से बात कर रहा था कि वी शुड हैव ट्यूमर बोर्ड्स। हमें एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को डिसाइड करना चाहिए, एक डॉक्टर को नहीं करना। जब ग्रुप ऑफ डॉक्टर करेंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। दुनिया भर में ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कैंसर इज प्रिवेंटेबल। 80 to 90% of cancers are due to our habits and activity. Smoking, आप जैकेट को टूटा हुआ दांत है उसे लेके फिर रहे हैं, कुछ नहीं, उसके जख्म होने से कैंसर हो सकता है, राइट? We don't take water, हम पानी नहीं पीते। पानी क्यों नहीं पीते? पेशाब आएगा, बड़ी हराम चीज है ना जो आएगी। लेकिन अगर ये इतना गलत होता तो अल्लाह ताला क्यों रोकता? अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, पानी पिए, मेक योर स्टूल सॉफ्ट, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी।
आपको गर्मियों में 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। कितने लोग पीते हैं? नहीं। And most of them are constipated. And that constipation leads to colon cancer. आप इनकी एहतियाती तदाबीर हैं आपके पास। Why don't you go for that? हम ये कहते हैं कैंसर इनक्योरेबल, भाई क्योरेबल है अगर आप उसके लिए एहतियात करेंगे। साल में एक बार हर शख्स अपना एक्सरे चेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड, कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट यूरिन करवा ले, आपको सब कुछ पता चल जाएगा आपके अंदर। और जब पता चलेगा उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। आप इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं। मगर हम जो हम गवर्नमेंट सेक्टर के लोग थे, जब मैंने ज्वाइन किया 35 साल पहले, 36 साल पहले, उस वक्त हमारा रेगुलर दिसंबर में इन्वेस्टिगेशन होती थी और हमारी एसीआर की साइन होती थी जब तक हमारे को टेस्ट। अब कौन करता है? यार मैं ठीक कर दूं, यार मैं ठीक कर दूं। सो दिस इज आवर एटीट्यूड। हम एटीट्यूड के बारे में बट सिनेरियो क्या है? 10 million न्यू केसेस एवरी ईयर, 4.7 million in Western world, जिनके पास 97%, 95% resources, and 5.5 million in the third world, जिनके पास 0.5%. 6 million deaths every year. Then in 2030, cancer will be the largest killer. अभी भी है one of the largest, मगर 2030 में ये largest होगा। पाकिस्तान का सिनेरियो देखें, sorry, cancer is the cause of 12% of all deaths in Pakistan. Then in Pakistan, 10 lakh cancer cases at any point of annually 1.5 lakhs are cases are detected. ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 30 सेंटर है पाकिस्तान जहाँ जहाँ कैंसर का इलाज हो रहा है। मैं ये सेंटर वाला पार्ट जो है जिसमें बलूचिस्तान से के और पंजाब, साउथ पंजाब पूरा इसमें और मुल्तान के एरिया में एक सेंटर भावलपुर में, एक वहीं पे आता, 2 मुल्तान में, टोटल सेंटर। आपका पेशेंट कहाँ जाए? देखिए क्वेटा का पूरा बलूचिस्तान सिर्फ एक सेंटर, तो आप कहाँ जाएंगे? पेशेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है कि हॉस्पिटल। मैंने एक सजेशन दिया था गवर्नमेंट को कि मेक अ कैंसर हॉस्पिटल comprehensive attended every divisional headquarters। पंजाब में 12 डिवीजन है, हर एक को नाम है। इतना तो है किसी के पास कि गुजरांवाला पेशेंट, सियालकोट से गुजरांवाला, राइट, जो जंग का पेशेंट है फैसलाबाद आ जाए, ये हो सकता है, मगर हम बाकी नहीं कर सकते। Why patient presented? Lack of awareness, quacks, then financial problems, fear of treatment, जैसे मैंने कहा खवातीन करती हैं, then cultural and social aspects। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको एक बता देता हूँ कि 9 मार्च 2019 को दिसंबर 18 में मेरी एक पेशेंट थी, उसकी डेथ हो गई। शी वाज स्टेज 4 पे। उसके हस्बैंड को एक पीर ने कह दिया कि डॉक्टर ने तेरा गलत इलाज किया, हालांकि उसके बाद रिपोर्ट शौकतनामा में और एक दिन मैं बाजार जा रहा था, उसने मुझे रोक के मेरे 20 से ऊपर पहले बाहर से फिर अंदर से 2 गोलियां मार पिस्टल रख के, और मैं वाइस चांसलर 20 चेयर पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जानता बचा दिया। मगर ये आलम है, लोग डॉक्टर पे नहीं यकीन करेंगे, क्वेस पे जाएंगे, पीरो फकीरों पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे। तो हम कैंसर को कैसे कर सकते? सवाल आता है कि इस कैंसर क्योरेबल? मैं तो क्या पूछे, इंटरैक्टिव होगा तो आप जाते रहेंगे, ये तो सोएंगे। Assalamualaikum. So I have a question. We have seen that बल्कि मैं उर्दू में आपसे सवाल करूँगी so that आप भी ज़्यादा अच्छा हमारा आराम से स्टार्ट कर सके। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी जो हमारी डिजीजेज हैं, लोग उनसे नहीं घबराते हैं, उनका इलाज करते हैं क्योंकि उनको लगता है they are comparatively less expensive, they are affordable।
बट जो कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं ओवरऑल, मतलब अगर देखें कि कोई भी फैमिली में एक मेंबर भी उसमें अगर कोई कैंसर से सफर कर रहा है, so they say that they have to sell their assets, they have to sell their houses, they have to sell their land, ताकि उस कैंसर का इलाज किया जा सके। उसके अलावा कैंसर तो दोबारा से रीअकर भी होता है। तो सर इसका क्या मतलब, इसके बारे में क्या अवेयरनेस आप देना चाहेंगे? और अगर ये एक एक्सपेंसिव डिजीज है तो पाकिस्तान में और अथॉरिटीज वो कौन से मेजर्स ले सकते हैं जिसकी वजह से कि इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके गवर्नमेंट लेवल्स पे या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हम कैसे हेल्प ले सकते हैं? मैं जी प्रेजेंटली प्रेसिडेंट ऑफ हेल्थ सोसाइटी मुल्तान। वी स्टार्टेड इन 1995, 30 years, और हम कोई ऑलमोस्ट 15 करोड़ की दवाइयां दे चुके हैं। बात यह है कि एक तो ये है कि जब तक जैसे आज वेट इस तरह की नहीं होगी तो लोग खौफजदा रहेंगे और इलाज नहीं। मेरी ये शर्ट थी, अगर इस पे कील लगा हुआ है, मैं गुजरात कील ने फाड़, अगर मैं रफू करवा लूंगा मेरा सूट बच जाएगा, नहीं करवाऊंगा तो नया सूट लेगा। अगर आपको कोई चीज फील हो रही है, इन्वेस्टिगेटेड एंड गेट इट ट्रीटेड। हम लोग उस वक्त इलाज करवाते हैं जब काम बिगड़ चुका हो, उस वक्त महंगा भी होगा, ठीक है। अगर रिपेयर करवाएंगे 100 रुपए में हो जाएगा, 200 रुपए में, अगर नया सूट लेना पड़ेगा तो 4-5 हजार का। तो हमें अवेयरनेस देनी है, पब्लिक को बताना है कि ये काबिल इलाज है। हमारे यहाँ एक बहुत सस्ती चीज है, वो है मशरूम। हम लोग इलाज करते हैं ना, कोई पेशेंट आता क्या कहेगा, मेरा मामू का बेटा जो है ना वो अमेरिका, मैं उससे पूछूंगा क्या वो डॉक्टर है? नहीं, वो झाड़ू देता है, ठीक है। अब बताएं वो सही बताएगा या मैं सही? तो हमें ये अवेयरनेस, ये जो लेक्चर्स हैं, ये टॉक्स हैं, ये ज्यादा जब तक ये अवेयरनेस लेक्चर्स नहीं होंगे ना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस से जो कैंसर सोसाइटी मुल्तान का मेरा है, हम अपने रीजन के तमाम पेशेंट्स को देते हैं और उन पेशेंट्स को हम कहते हैं एक साइकिल आप देंगे, दूसरा हम देंगे, कॉस्ट आधी हो गई। वो भी साइकिल हम क्यों देते हैं? क्योंकि जब तक हमारा मेंटेलिटी ये है कि जब तक हमारा अपना पैसा ही लगे, हम कहेंगे ये कौन सी दूसरी, हमारा एटीट्यूड ऐसा है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी अगर आप बुरा ना माने, आप फार्मा इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल से, हमें बेड़ा कर दिया फार्मास्यूटिकल। हमें वो कह देंगे आपको प्लांट ट्रिप पे ले जाएंगे, मतलब आप ये दवाई लिखिए, आपको इतना कमीशन देंगे, या वो कमीशन अपनी कॉस्ट पे कम करो। पैक्लीटैक्सोल का आपने नाम सुना होगा। पैक्लीटैक्सोल 1998 में आई, मैंने अपने दोस्त की वादा को लगाई 80,000, 18,000, ठीक है। आज कितनी? $8 ऊपर गया या नीचे गया? एंड इट इज अवेलेबल इन इट। तो ये देखे ना, गरीब आदमी कहां जाए? गरीब को तो नहीं पता, आपको किसी की जरूरत नहीं है। वो जो आपने आरएमपी रिटेल प्राइस जो है वो आपने दे दिए 35,000, ठीक है, और दे रहे हैं आप, ठीक है। तो गरीब आदमी को तो ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो तो उतने 35,000 लिखा हुआ है, या मेडिकल स्टोर वाला कमाएगा, या कंपनी वाला कमाएगा, या डॉक्टर कमाएगा, कोई ना कोई तो कमाएगा। है वो 8,000 की, यही 8,000 की टेस्टों को देखने, लेबोरेटरीज को देखने, एवरीवेयर इज दिस। तो जवाब ये सुनिए, इसीलिए लोग मेरे को नहीं करते थे कि मैं ब्लडली बोलूं इस कैंसर के नाम गॉट की आंसर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस कैंसर क्योरेबल? यस, one that can be cured, one that can be controlled, and one that can be effectively palliated. हम इस पे नहीं तवज्जो दे रहे। Can you cancer be detected early? Yes. Annual medical checkup,
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, ट्यूमर मार्कर्स, पैप स्मीयर्स एंड जीन टेस्ट ये अवेलेबल है, आप करवाएं पता चल जाएगा हमारे पास पेशेंट किस सिचुएशन में आता है। लुक एट दिस, इन हालात में पेशेंट आता है, अब क्या करेंगे? पड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चल रहे हैं। 1992 myself at Montreal. 1990 when it was detected operative. हमने ये पूछा क्या? मैंने कहा सर operated. I got it operated same. Why to delay? मैंने किसी को नहीं बताया, जाके देखा और मैंने ऑपरेशन करवाया। एक चीज आ गई है, इलाज करना। मैं आपके सामने अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, क्योर 92, 20, 25, 33 years. Why to be worried? Look at this. ये हाल हो गई स्टेज, अब इसे क्या करें? Look at this. Advanced stage. जब ये पेशेंट ऐसे आएंगे तो आपका इलाज कैसे होगा? I retired last year, तो 10 साल का डेटा दे रहा हूँ। टोटल पेशेंट है 42,886 मेरे डिपार्टमेंट 10 साल जो सिर्फ देखे 5,575 और जिन्हें ट्रीट किया आप कर रहे हैं, कर सकते हैं। कैन बी प्रिवेंट कैंसर? यस। हाउ? ईट फिट, एक्सरसाइज, डाइटिशियन बैठे हुए आएंगे मेरे पास, डाइट, रेगुलर फिजिकल चेकअप, healthy diets, give up tobacco, get vaccinated. So, yes, science. What is it? हमारी खुराक क्या है? 90% is chicken, 10% is chai. That's all. Finished. Am I right? अब हम क्या करते हैं? What is chicken? आज से 40 साल पहले जब मेरी माँ मुझे कहती थी जाओ मुर्गी लेके आओ, तो पकड़ी नहीं जाती। आज की मुर्गी को जहां बिठाओ वहां से हिलती नहीं है। लोगों को बताना पड़ता है कि मुर्गी एक परिंदा है, वो परिंदा है ही नहीं, उड़ना दूर की ओर चलता नहीं है। फर्क क्या है? वो 6 माह में डेवलप होता था, ये 26 में जी, वो एक अलग बात है। और जो है आपकी कोशिश होती है कंट्रोल शेड वाला, उसकी कोशिश होती है कि जैसे उसका ऑर्डर हुआ रातों रात गाड़ी में डाले भेजे, उससे पहले वो एक टीका लगाता है, पर उठा के टीका लगाता है स्टीरॉइड का, कि ये यहां से जिंदा चला। आगे जाके दुकान पे पहुंचने गाड़ी की कोशिश होती है, सुबह सुबह दुकानदार की कोशिश होती है कि आज बिकता, नहीं बिकता तो KFC, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, तो होटल उधर चल रहा है। और शाम को जब हम बच्चे होटलिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? चिकन विंग्स। और वो अभी स्टीरॉइड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, आप वापस सिस्टम से बेहतर जाते हैं। वो स्टीरॉइड जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, when you eat that, 8 साल की डेट ऑफ मेनार के आ चुकी, 8 साल की बच्ची जवान हुई। हमारे वक्त में 12, 13, 14 साल, अब 8 साल की बच्ची जवान हो गई है। 15 साल में कैंसर होता है, 20 साल में। इट्स वेरी एग्रेसिव इन यंगर एज, वेरी एग्रेसिव। तो आप खिला क्या है? मैंने कई माओ से कहा इसी तरह क्या क्या खिलाए कि जी बच्चे खाते, और भाई बच्चों को जो तो खिलाओगे वही खाएंगे ना। तुम ड्यूटी से आती हो, खाना पकाया, जल्दी 10 मिनट में चिकन पक गया और खिला दिया। कभी तुमने सब्जी खिलाई? हमारी माँ ने हमें साग खिलाया, 4 घंटे में आग में फुटता था। आज की माँ को पकाएगी और वो न्यूट्रिशन उसकी साग की क्या कंपेयर कर सकते हैं आप इससे, चिकन से?
हम वेजिटेबल ही खाते हैं, हम फ्रूट नहीं खाते, कि गंदे पानी में पड़े। भाई गधा खाने से तो बेहतर है, कुत्ता खाने से तो बेहतर है। सिंघाड़ा कहाँ होता है? सिंघाड़े की न्यूट्रिशन क्या है बताएं आप? न्यूट्रिशन है ये? आपको आयरन कहां से मिलेगी? हमारी खातन धूप में नहीं बैठती, विटामिन डी का टीका पी देंगे, धूप में नहीं बैठती, काली हो जाएगी। फ्रूट ही खाना, दूध नहीं पीना, मोटी हो जाएगी। तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस ना हो तो क्या हो, बोन्स वीक ना हो तो क्या हो? आपकी जो चीज खुराक है वो ले नहीं रहे आप, आपको प्रॉपर चीज खाएंगे तो आगे चले। How to detect cancer? Change in bladder and bowel habits, sore throat and healing, not healing, unusual bleeding, thickening or lump in the breast, indigestion, difficulty in swallowing, obvious change in wart or bone, nagging cough, hoarseness of voice. मैं इसके लिए इन सब बातों की जगह सिर्फ एक बात करूं, कोई भी इस तकलीफ हो, कोई भी खांसी है, अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज के बावजूद वो एक बात करता ठीक हो, गेट इट इन्वेस्ट। बस बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा क्योंकि क्या हो सकता है, गेट इट, सिंपल सीबीसी से पता चल जाएगा, ब्लड कंप्लीट ब्लड लॉस। तो सिंपल टेस्ट करवाने में तो कोई हर्ज नहीं, करवाए। कॉजेस क्या है? एनवायरमेंटल, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, वायरसेस, जिसके लिए आजकल आपको बहुत आ रहा है कि वैक्सीन करवाएं सर्वाइकल कैंसर। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, टाइम शॉर्ट है, बाकी लोगों को बीटरनट के पान के बारे में क्या ख्याल है पता है? अब पान के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं पता? मैं आपको बता दूं, खाएंगी नेवर। उसके ऊपर लगता है चूना, 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 लाइम। अब हमारे वक्त में पेंट नहीं होता था, बचपन में चूना दीवारों पे करते और उसे पानी में भिगोया जाता था और वो धुआं निकलता। वो चूना जो है वो अंदर जाए क्या करेगा? जलाएगा नहीं। फिर कत्था, कत्था क्या है? कत्था आपका एक द्रव की बाढ़ छाल है। आप वो छाल खा रहे हैं तो क्या होगा? खाएंगे आप छाल। फिर सुपारी, सुपारी जहां लगेगी, जैसे टूटा हुआ दांत तो उसकी नोक हो वहां जख्म करेगी। और फिर सबसे ऊपर तंबाकू, तंबाकू काट देगा और फिर वो कैंसर होगा। इसी तरह बीड़ा, रुस्वान, इसके इंग्रेडिएंट्स पता है क्या? इसके इंग्रेडिएंट चूना, तंबाकू, पानी, मट्टी और ऐश, राख, स्वाद, और वो भी लकड़ी की नहीं, गोबर की। ये बनते हुए मैंने देखी। मैंने इसकी 99 में फिल्म बनाई थी और मैंने कोशिश की कि सिनेमाघरों में चले, नहीं चले थी। इतना बड़ा माफिया नहीं चले। What to do? Education. Physicians, triple B, BB, इन तीनों को गाइडलाइन, तब जाके पता चला। अब आते हैं ब्रेस्ट कैंसर। When do you think of breast cancer? जब घर में किसी को होता है, उसके अलावा हमें कोई फिक्र नहीं। आप उस वक्त देखते हैं जब घर में कैंसर। Now look at these questions. आपके ज़हन में ये सवाल आते हैं, लेकिन जरा गौर से। बढ़े कुछ और सवाल? यही सवाल हो गया। आगे ब्रेस्ट कैंसर क्या है? मोस्ट कॉमन कैंसर ऑर्गन। एक औरत होना ही काफी है, जिस तरह प्रोस्टेट कैंसर के लिए मर्द होना काफी है। 62% चांस है मेरे अंदर प्रोस्टेट।
वन हु इज 80 years old उसके अंदर 80% चांस। इसी तरह खातून में ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ खातून होना था और 75% ऑफ women with breast cancer have no respect। आपको नहीं पता किस वक्त हो जाए, कोई रिस्पेक्ट नहीं। Then every 9th woman will get breast cancer in her life, but in Pakistan every 8। हमारे यहाँ इसका इंसिडेंस ज्यादा है क्योंकि बाकी ममालिक में सर्विस की कैंसर बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, वी आर केयरफुल, इसलिए सर्विस का कैंसर हमारे अंदर कम है, ब्रेस्ट कैंसर। Then it runs in family, most 85% breast cancer is women with no family. When detected early, patients with breast cancer have more treatment chances and more chances. It is 33% of all the cancers among females in Pakistan. Occurs at younger age than women in other countries. Europe, America में जरा older age. This diagnosis is late. Majority are not doing self-breast examination. मैं उस पे आऊँगा। ये चीज anatomy मैडम बदला और बताएंगी तो मैं इस पे नहीं आऊँगा। ये देखिए इस तरह के पेशेंट आते हैं हमारे पास। एडवांस्ड लिवर मैट्स, बोन मैट्स, ये देखें अर्ली स्टेज कैंसर सिर्फ 20%, 55% लोकली एडवांस्ड और 25% मेटास्टेटिक। सो मेजॉरिटी आर लोकली एडवांस्ड पेशेंट्स। ये देखें इतना एडवांस जब हमारे पास डॉक्टर तो ऐसे ही है, उस वक्त हम क्या करें? अच्छा एक बात और बता दो कि इस कैंसर से मर्द मुबर्रा नहीं, मर्दों में भी होता है और दुनिया भर में इसका इंसिडेंस जो है वो ऑलमोस्ट 2% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर। मगर मेरा डेटा जो है मैंने स्टडी की प्रेजेंटेड है 4.5% ब्रेस्ट कैंसर occurs in South Punjab। हमारे यहाँ इंसिडेंट बहुत ज्यादा, क्यों? लड़ाई रोज बहुत, चर्बी बहुत। Look at this, इस तरह आता है एडवांस ब्रेस्ट कैंसर और आप उसे क्या देखें? मेरे पास आते हैं ना तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ बाल रहते हैं 10 साल से, 10 साल से क्या कर रहे हो आगे दिखाओ। अच्छा जी, वेस्टेजिया, एवरी लंप इज नॉट कैंसर। यंगर एज ग्रुप में ज्यादा फाइब्रोइड नॉर्मल है और उसके हम कर सकते हैं, राइट? अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एज है, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशंस है, हाई फैट डाइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई फैट डाइट। अर्ली डिटेक्शन स्टेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज में स्टेज 1 to 60-80% होते हैं और स्टेज 3 4 20%। डेवलपिंग कंट्रीज में उलट है, स्टेज 1 to 20% एंड स्टेज 3 4 80%। अब आते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। कब करना चाहिए? एनीबॉडी कब करना चाहिए? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए 20 years की एज में, उसके बाद रेगुलर मंथली करना चाहिए। ऑल दोज प्रीमेनोपॉजल लेडीज, उनके लिए है दे शुड डू इट कभी भी नहीं फ्रॉम 7th to 10th डे ऑफ द मंथली साइकिल। आगे पीछे करने से कोई फायदा नहीं। 7th to 10th डे ऑफ मंथली साइकिल, उसके बाद आप करते हैं गुड बाय। And postmenopausal or males every first of the month। अब करना कैसे? स्टैंड स्ट्रेट। आप जब नहाने के लिए जाएं, कपड़े रिमूव करें, स्ट्रेट खड़े हो जाए एंड लुक स्ट्रेट इनटू द मिरर। जब आप मिरर में देखेंगे, लुक एट द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, look at the nipple, look at the areola,
देखिए उनका साइज एक है, लेवल एक है। कुछ खवातीन में, बच्चियों में लेवल ऊपर नीचे होता है, मगर वो नेचुरल है, वो आपको पता होगा कैसे। मगर अगर नहीं है तो आप देखें दोनों का लेवल एक है, कहीं कोई बुखार तो नहीं, कहीं कोई डिप्रेशन तो नहीं, कोई डिस्कलरेशन तो नहीं, कोई दाना तो नहीं, कोई स्किन चेंज तो नहीं, ये सब चीजें देखिए स्ट्रेट खड़े। उसके बाद आपने हाथ दोनों यहां रख ले और फिर ये सब कुछ देखिए। इससे क्या होगा, ब्रेस्ट आपकी स्ट्रेच होगी यहां रख के, और फिर आपने ये सब चीजें देखी। फिर थर्ड पोजीशन पे आपने रुकू में जाना है, ये ग्रेविटी की वजह से ब्रेस्ट नीचे आएगी। फिर देखें कहीं चेस्ट के साथ, चेस्ट वॉल के साथ फिक्स तो नहीं, कहीं स्किन तो फिक्स नहीं है, कोई डिस्कलरेशन, कोई उस तरह ना नजर आए, इस तरह नजर आ जाए। सो लुक इनटू द मिरर एंड इस पोजीशन में देखिए, 3 पोजीशन में स्ट्रेट, यहां हाथ रख के और इस तरह हाथ सीधा और इस तरह। सो दिस इज इंस्पेक्शन। Once you have done inspection, then you go for palpation. Palpation आपने 3 उंगलियों से करनी, दाएं हाथ की 3 उंगलियों से बाईं तरफ और बाएं हाथ की 3 उंगलियों से दाईं तरफ। तरीका सिंपल है, started from nipple, go turn round, 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 go to the axilla, armpit. इसी तरह इस तरह। दूसरा तरीका क्या है, यहां से शुरू हो जाए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और एक्सिला। तीसरा तरीका क्या है, इस तरह घड़ी है, सेंटर से शुरू हो, 9 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, 10 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, 8 o'clock, आपको सब पता चलता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई लम्ब आपको महसूस होता है, गुंडी महसूस होती है, गो टू द डॉक्टर, वो आपको गाइड करते हैं। मगर हम इग्नोर करते, हम कहते हैं कुछ नहीं करना, पे होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो कहती 3 फिगर आपने कैसे 3 तरीके कैसे देखे, तो कहते अगर कहीं हो, यू फील इट, देन जब आप डॉक्टर के पास देखेंगे जाएंगे, वो पैल्पेशन करेगा, एग्जामिनेशन करेगा और फिर देखेगा कहाँ। अब सारे कैंसर नहीं होते लंग्स, कुछ बिनाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। जो बिनाइन है उन्होंने कुछ अच्छा, फिर मेमोग्राफी जरूरी है। मेमोग्राफी 35 साल की उम्र के बाद एफडीए ने अप्रूव किया कि 35 साल की उम्र के बाद आप मेमोग्राफी, क्योंकि उस वक्त यंगर एज ग्रुप में ईस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है, ब्रेस्ट डेंस होती है, नहीं पता चलता है, कई दफा नाम छोड़ जाता है। मगर 35 के बाद आपने रेगुलर मेमोग्राफी एनुअली करवा है, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। Who should have मेमोग्राफी? आपको बता दिया एज बाई 35 के बाद। ये एमआरआई की रिपोर्ट है, ये आपकी मेमोग्राफी की स्टीरियोटाइपिक बायोप्सी। अच्छा जी, how big will be a lump in your breast before your discovery? Less than 0.5 centimeter mammogram, 0.5 to 1 centimeter self-restricted, और more than 1 centimeter तो नजर ही आ जाएगा कि कहाँ है। Can I be sure अगर मेमोग्राफी नेगेटिव हो? No, 10% चांस होता है कि फिर भी अंदर रह जाता है। फिर इसका एक सिंपल टेस्ट है, आपको जरूरी नहीं ऑपरेशन, आप सर्जन के जाए, वो एफएनए करके आपको टेस्ट करके बता देंगे कि है ये, वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट से देख के बता देंगे। सो ये भी सिंपल टेस्ट है जो हो सकता है। मैं कट शॉर्ट करूंगा। ट्रीटमेंट के लिए एक टीम बनती है जिसमें सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिक नर्स, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो आपका सवाल है कि बताएं पैसे कहां से मिलेंगे, अफोर्ड नहीं करता। देन सर्जरी इज द मेन, वो मैंने बताएंगे आपको। दूसरा इलाज है रेडियोथेरेपी और तीसरा इलाज है कीमोथेरेपी। मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि सर्जरी किसकी होनी है, जो रिसेक्टेबल, जिसे आप देखें कि वो ऑपरेट होकर स्किन अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, जख्म बचेगा। आप उसे एक केस है जो ऑपरेट करने के बाद आप जब बायोप्सी लेते हैं, वो कहते हैं कि मार्जिन इज नॉट क्लियर, देन गो फॉर रेडियोथेरेपी। और कीमोथेरेपी उसकी जो डिजीज फैल चुकी वो फिर जगह पे उसकी कीमो,
और कई दफा ऐसा होता है कि इल्जाम बहुत बड़ा है, सर्जन कहता है मैं ऑपरेट करूंगा तो उस टेस्ट के प्रॉब्लम, तो आप कीमोथेरेपी करके उसे श्रिंक करो। Once you shrink it, that surgeon will be comparatively operating. मेरा ख्याल है मैंने आपका काम। Any questions? I'm ready to answer. Any question? सर एक क्वेश्चन है सर, मैंने ये पूछना था कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपने अपना ये जो शुगर एक तरह जो डिजर्ट होता है ये छोड़े, तो इसकी क्या रीजन है? अब कहते नहीं है और कॉन्शियसली कहते हैं लेकिन लोग कहते हैं वजह लोग भी सुनते हैं। मैंने एक्चुअली सर मेरी मदर लो को है मैं आपको बताता हूँ आपके दीन में क्या है। हर चीज खाएं, म्याना रवि से खाएं। 90% चिकन 10% चाइना करें। आप फ्रूट भी खाएं, सब्जी भी खाएं, चीनी भी खाएं, मीठा भी खाएं, हर चीज खाएं, मगर सिर्फ चीनी ना खाते हैं, सिर्फ मीठा ना खाते हैं, आप हर चीज खाएं। मैं अफगानिस्तान जाता हूँ तो काबुल कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनके यहाँ मैक्सिमम कैंसर ईसोफेगस और स्टमक है, वो खाते हैं सज्जी बकरा जो है वो डायरेक्ट फ्यूम्स पे पकता है एंड दैट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजामीन। वो नाइट्रोजामीन्स कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर करते हैं। उनके यहाँ मेजॉरिटी एक। अब साउथ पंजाब में है, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, उसी कमरे में अनाज पड़ा है, उसी कमरे में पेस्टिसाइड है, उसी कमरे में आपके फर्टिलाइजर है। बता आएगा पेस्टिसाइड वाला, वो स्प्रे डालेगा, उसमें उड़ेलेगा और चल जाएगा स्प्रे कर। वो स्प्रे अनाज में भी गिर जाएगा, वही अनाज आप पिसवाएंगे और खा लेंगे, केमिकल आपके पेट में। तो हमारे यहाँ ल्यूकीमिया बहुत कम है, लिम्फोमा बहुत कम है, ब्लड कैंसर। सो डिफरेंट, आप कराची चल जाए, वो पान खाते हैं, उन्हें मुंह का कैंसर बहुत। तो हर इलाके का अपना है, आप हर चीज खाएं, याद रवि से, वो खराब तो नहीं है ना, सिर्फ हलाल और याद। Any other question? जी मेरी कजन थी, मेरी रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग थी और एक क्वालिफाइड और वेल इन्फॉर्म्ड ये हम लोग की सोसाइटी का है कि डॉक्टर हजरात हो, जरा सी उनको हेडेक हुई 2 दफा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये टीबी की किस्म है जो कि उससे मिल रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से 10 दिन चलती रही और 11वें दिन उन्होंने कहा कि ये स्टेज 4 है। तो अब जैसा कि आप कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन, दे आर द क्वालिफाइड पीपल, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने डिटेक्शन या अपने इग्नोरेंस की होगी, लेकिन कुछ कैंसर जैसे मेरी खाला को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा था, तो शी वाज सेइंग कि मेरी थोड़ी सी सांस उखड़ रही है, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वो कहते हैं शायद कोई दमा है या कुछ है, जब पता चला तो शी वाज डायग्नोज्ड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड शी डाइड। इसी तरह कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट थे और बहुत ही क्वालिफाइड। फरीद ने मुझे बुलाया हुआ है उधर कॉलेज। अच्छा, फरीद अगर मेरा स्कूल से जुड़ी। अच्छा ठीक है, he was the vice chancellor of our university। हम दोनों के थे साथ, वो फैसलाबाद का मैं मुद्दा। तो बात क्या, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम कहेंगे वो बस उनको हेडेक हुई सर को, उन्होंने सर्जरी करवा दी, सर्जरी के बाद वो दोबारा आए और पता नहीं उनके कौन से सेल्स थोड़े बहुत रह गए। अब बेटा पहली बात, हमारी लैब्स हर जगह खुली, क्वालिफाइड बंदे, हमारे पैसे कम खर्च होने के लिए ना पेशेंट 3rd क्लास लैब से टेस्ट करवा, उसकी वैल्यू कोई प्रॉपर गाइडिंग। अब मुझे नहीं पता कहाँ से। दूसरी बात, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे शौकत खाना, वो कहते हैं जी हम सारी इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवाएंगे, ठीक है। अब एक चीज जब पहले आ गई है, आपको डायग्नोज हो गया, स्टार्ट, आई बिलीव इन दैट। Once I get the diagnosis confirmation, मैं stand in the hospital, इससे ये हो गया, स्टार्ट। Why do delay? जब डिले करेंगे कैंसर, ठीक है। तो ये मुआशरे, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ ये जो बड़े इदारे हैं, इनके डॉक्टर्स फॉरेन ट्रेन, इंग्लैंड से, अमेरिका से,
जो फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स आते हैं ना, उन्हें एक हैबिट होती है, क्योंकि वहां पे सू हो जाए, अगर आप ये टेस्ट ना करवाए सू हो जाए, तो उस जगह से ट्रेनिंग की वजह से वो सारे टेस्ट करवाते हैं। जब तक ये होते हैं वो डरते हैं कि यार हमें सू ना हो जाए, पाकिस्तान में ये काम, ठीक है, हम उस वक्त से डरते हैं। अगली बात, हमारा मुआशरा और उनका मुआशरा फर्क है। वहां पे बाप जो 18 साल के बाद बच्चों ने अलग हो गए, बाप मेरा डॉक्टर पास आता है, तो एवरीथिंग द डॉक्टर टेल्स टू द पेशेंट, ठीक है, और जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ अगर एक बंदे को घर में कैंसर है तो उसका बच्चा इंपॉर्टेंट, हर बंदा इंपॉर्टेंट, उसे आग ही पूरा घर से ये कल्चरल डिफरेंसेस, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में क्या होना चाहिए, उनके मुआशरे जो हमारे हैं ना, हमारे मुआशरे में जो ट्रेन है वो डॉक्टर्स है, वो तो वहां से ट्रेनिंग क्या है जी आप सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने सुना है कि फास्टिंग आपकी हेल्थ से बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या ये करेक्ट है कि फास्टिंग रोजा रखने कोई स्टडी नहीं है, ये मिथ है? स्टडी नहीं है, आपको सकता है किसी को बेनिफिट हो गया हो, स्टडी नहीं है कोई स्टडी, कोई स्टडी। According to science, I guess if you are fasting, the cancer cells and go automatically to God or your child. Maybe वो refer करने उसकी। लिवर कैंसर, मैं जब 92 में ऑन्कोलॉजी में आया तो कभी कभी ग्रेजुअली ना पेशेंट बढ़ने शुरू हुए लिवर कैंसर। तो मेरे प्रोफेसर जो थे उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई नहीं, नॉर्मोडेक्स है, फिमोक्सिन। We started with एक पेशेंट था तकिया खान, कोयटा से था, 2 साल 5 साल जिंदा रहा, डायग्नोज केस होते हुए सिर्फ फिमोक्सिन। फिर हमने पेपर पब्लिश किया, एस्को ने भी स्टडी की, वहां से पता चला कि लिवर कैंसर में भी टीआर रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, जो पॉजिटिव आएंगे उन्हें रिमोक्सिन दे दो। आपने रिसर्च का रुझान, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। So my next question to you is a little bit research based, and I believe that this will help the overall audience. Since we are talking about breast cancer, to be very precise, and you have spoken about different cures और बहुत सारे आपने उनके इलाज बताए, different जो chemotherapy है, radiation है, then there is surgery involved. So as we all know that cancer जो है कुछ टाइम बाद भी occur होता है, अगर हम वो अगर जब आप शुगर बोर्ड के साथ करेंगे, स्टेप वाइज होगा कि सर्जरी का होनी है, कीमोथेरेपी का, एक सेल भी रह जाएगा और एक मेरे पास 25 साल से नॉर्मल लाइफ का once I had patient 75 का अटैक 1975 2008 में वो दूसरी ब्रेस्ट में आया। ये तो किसी वक्त कहीं भी हो सकता है। Sir, so my question is that breast cancer के लिए कौन सी जो ट्रीटमेंट जो तरीका है उसका सबसे पर्टिनेंट, सबसे सही तरीका कौन सा है कि वो दोबारा भी अकर ना हो? आपने बोला ब्रेस्ट कैंसर, there are 40 histological types of breast cancer, 40 की 4 ग्रेड हैं, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेट डिफरेंशिएटेड, पोअरली डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, कितने हो गए 107 और हर एक की 4 स्टेज, 540 किस्म का इलाज है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा बताओ? ठीक है, आप कितने बहन हैं? So that means that आप कितने बहन हैं? we are mashallah 3 brothers. तीनों की शक्लें में थोड़ी बहुत जी, आते मिलती, काफी किस्मत मिलती। हम कैसे कह सकते हैं जो ए को हुआ है वो बी को होगा, वो बी को हुआ है वो सी को होगा, सी को हुआ डी को होगा? You can never say. Every patient is different from others. So each case is different. Each case is a different. Real brothers, real sisters. Even one patient with both breasts, दोनों का different treatment हो। एक के अंदर invasive आ गया, इसके अंदर infiltrating आ गया। मेरी एक patient है, she is a doctor, gastroenterologist. शायद वो आई थी आपके पास, है ना? वो उसे हुआ, young, 30, उससे पहली दफा वो 27 years की। Now she is 35. दूसरी breast में different issue.
सो ये नहीं कह सकते। रिसर्च की बात करते हैं, मैं आखिरी बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह से मेरा क्वेश्चन आंसर किया, थैंक यू। आपको मैं आखिर में एक बात बता दूं, रिसर्च की बात। रिसर्च अब क्या? सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि आपने बताया फाइब्रोइड एडिनोमा जो है ये यंगर एज में होता है, तो क्या इसकी सर्जरी जरूरी है? क्योंकि वो मैडम के साथ सर्जन, क्योंकि हो सकता है जब इसका साइज इंक्रीज हो जाए या फिर ये कैंसर बन जाए। यूजुअली विटामिन डी वगैरह देने से भी हो जाता है और रिसर्च क्या है? मैं ऐसे डॉक्टर रिपोर्ट में जा रहा हूं। आप कितने साल से 14 years इस हॉल में कितनी दफा है? पर ये बताओ सीढ़ी कितनी? This is observation and research. चेक करेंगे। आपके वक्त और भारत का शुक्रिया। Now I would like to request Sir Zishan, Dr. Ramla and Dr. Aisha to please come on the stage to present the souvenir as a token of appreciation to our honorable guest, Professor Dr. Ahmad Ijaz Masood Sahab. How many medical students do we have? कौन सा ईयर ज़्यादा? थर्ड ईयर के कितने? फाइनल ईयर? ओके, दैट्स गुड। तो वैसे तो सर की टॉक के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है, बट एक सर्जन पर्सपेक्टिव या एक ब्रेस्ट क्लिनिक के डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें जो आई डू वांट टू हाईलाइट, एंड दैट्स मोर फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। क्योंकि एक चीज़ जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, द रीजन फॉर लेट प्रेजेंटेशन, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड नॉट अ वेरी गुड थिंग। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बट एडवांस डिजीज, और वो हमसे पूछते हैं कि आप इतना लेट क्यों आए? वो हमें कहते हैं कि हमने फलां डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था ये कुछ नहीं। ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस नहीं है इस डिजीज के बारे में जितनी के होनी चाहिए। ठीक है, सो आवर फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरा ज़्यादा फोकस आप लोगों पे होगा। This is just a brief overview, disease burden के बारे में मेरे ख्याल बात करने की जरूरत नहीं है, सर बहुत इस तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो रिपोर्टेड है कि 90,000 केसेस आर डायग्नोज्ड एनुअली, मेरा ख्याल है ये अंडर रिपोर्टेड है। ठीक है, क्यों? वी डोंट हैव अ सेंट्रलाइज्ड कैंसर रजिस्ट्री। कोई एक इंस्टीट्यूट या कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे पूरे मुल्क का डेटा अपलोड होगा। अभी अनाउंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया। जी सर, भी रिसेंटली शायद स्टार्ट and 40,000 deaths annually. हमारी सोसाइटी में the women commonly present at stage 3. अब stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 डिफरेंस क्या होता है? स्टूडेंट्स बताओ। I mean, why is the stage so important? सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इम्पैक्ट होती है स्टेज से? प्रोग्नोसिस। ठीक है, स्टेज 1 पे पेशेंट आएगा और स्टेज 4 पे पेशेंट आएगा, तो प्रोग्नोसिस चेंज ड्रास्टिकली। तो अगर हमारे पास अर्ली पेशेंट नहीं आ रहा, हमारे मैक्सिमम एफर्ट्स के बावजूद we may not be able to help them. अच्छा, diagnosis at an earlier stage is actually rising. उसकी रीजन है कि शायद ये अवेयरनेस कैंपेन्स का कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास स्क्रीन डिटेक्टेड पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं। स्क्रीन डिटेक्टेड मतलब हाँ, मतलब वो फील नहीं हुआ, दे वेंट फॉर अ स्क्रीनिंग टेस्ट या किसी और वजह से कुछ भी हुआ, दे नोटिस्ड कि अब उनके ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, which is a good thing. Average age of diagnosis in Pakistan is 51.4. That's at least a decade younger than the Western population. इसकी क्या वजह है? We don't know, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं। रिस्क फैक्टर्स, इसके बारे में सर बात कर चुके हैं, सो आई वोंट रिपीट इट। स्क्रीनिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस क्यों है?
so that we can have early patients coming to us. ठीक है, स्क्रीनिंग के 3 पार्ट्स हैं. Monthly self-examination, annual clinical examination by a trained healthcare worker, and imaging, either an ultrasound or a mammogram. Monthly self-examination बहुत अच्छी तरह explain कर दिया, ये भी बता दिया कि कब करना चाहिए. ठीक है, annual clinical examination by a trained health worker. यहाँ पे keyword is the trained health worker. Not everyone is trained to do a proper breast examination. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक तो जो झिझक होती है ना क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, वो अपनी दूर कर लें बिफोर यू स्टार्ट योर हाउस जॉब. 3rd ईयर से वार्ड्स में जाना इसलिए शुरू करते हैं सो दैट बाय द टाइम हाउस जॉब शुरू हो तो वो जो झिझक होती है मरीज को हाथ लगाने की ना, वो दूर हो जानी चाहिए. ठीक है, दूसरा, हाउ टू डू अ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये बहुत जरूरी है. कितने लोग करते हैं, कितने लोगों ने एक्चुअली किसी पेशेंट का प्रॉपर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया हुआ है? You guys are in final year, तो 3rd year 4th year में पेशेंट्स देखे होंगे. Anyone? क्यों नहीं किया, कोई बता दे. हाँ जी, ब्लड सैंपल कितने लोगों ने किया, इंजेक्शन कितनों ने लगाया है? Why? नहीं, मुझे किसने कहा मेडिकल स्टूडेंट्स की? MBBS स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ही नहीं है. अच्छा, अच्छा, स्क्रीनिंग का रोल एक और भी है. ठीक है, कि ये जो भी नजर आ रहा है ये अब है या पुराना है. ठीक है, अगर स्क्रीनिंग स्टार्ट एट द एज ऑफ 50, सपोज समवन कम्स और हमारे पास 50 साल की एज से उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है, उनके मैमोग्राम में कुछ नजर आ गया, अगर तो वो पुरानी चीज है वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अगर वो कुछ नया है फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना. हमें कैसे पता चलेगा कि वो पुराना है या नया है? कैसे पता चलेगा, यानी कैसे? The easiest way would have been कि उसका पहले कभी मैमोग्राम हुआ. ठीक है, तो हमारे वहाँ ये होता नहीं है. इसके बारे में बात हो गई. What to look for foreign self-breast examination, इसकी भी बात हो गई. Okay. Mammogram above the age of 40 and ultrasound below the age of 40. इसकी क्या वजह है? सर ने थोड़ा सा इस पॉइंट को टच किया था. ठीक है, मैमोग्राम बिलो दी एज ऑफ 40 करा सकते हैं. मैमोग्राम कराने का कोई नुकसान है बिलो दी एज ऑफ 40? कौन सी रेडिएशन? मैमोग्राम क्या है? इट्स एन एक्सरे. सिंपल चेस्ट एक्सरे हार्मफुल होता है? मैमोग्राम और चेस्ट एक्सरे को कंपेयर किया जाए, किसमें ज्यादा रेडिएशन? चेस्ट नहीं है. मैमोग्राम हार्मफुल नहीं है, इट्स अ मिथ. ठीक है, मैमोग्राम में चेस्ट एक्सरे से बहुत कम रेडिएशन है. And it's simply an X-ray. कोई different radiation नहीं है. So it's not harmful. That's a very good question. ये हमें different information देता है. ठीक है, अब एक गिल्टी है, वो solid है या वो cystic है, मतलब उसके अंदर fluid है, ये हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगा. Mammogram will not tell that. Mammogram हमें बस ये बताएगा there is something over there. ठीक है, मैं आपको दूसरी चीज, एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, कैल्सिफिकेशंस, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस. माइक्रो कैल्सिफिकेशंस अल्ट्रासाउंड पे नहीं नजर आती, मैमोग्राम पे नजर आती. ठीक है, सो दे बोथ गिव डिफरेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो अगर एक लम्स के साथ पेशेंट आई है, मैं शायद दोनों चीजें कराऊंगी. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज के समझने की जरूरत है. स्क्रीनिंग इज समथिंग एल्स. अब एक लंप के साथ एक पेशेंट आ गया है, तो उसका हमने डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना है. उसके पैरामीटर्स डिफरेंट. वो शायद मैं 30 की एज में मैमोग्राम करा दूं, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ लंप. आई नो देयर इज अ लंप. मैंने उसके फीचर्स देखे.
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. क्लासिफिकेशन का थोड़ा बताइए कि उसका क्या कैल्सिफिकेशन कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं ब्रेस्ट ड्रॉबैक मतलब क्या? नहीं, उसकी डिफरेंट टाइप्स है, मैक्रो है, प्योमॉर्फिक है, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस की टाइप्स हैं. तो सर्टेन काइंड ऑफ कैल्सिफिकेशंस कैन बी ड्यू टू कैंसर. कैल्शियम डिपॉजिट्स इट कैन बी ड्यू टू कैंसर. और वो मैमोग्राम पे पिक होगा, वो अल्ट्रासाउंड पे नहीं पिक होगा. ठीक है, अब जैसे कौन सा मैमोग्राम यंगर पेशेंट का होगा अगर डेंस है ब्रेस्ट? टी. और ए रिलेटिवली ओल्डर. तो किसमें कैंसर हो तो ज्यादा इजीली नजर आएगा? ओल्डर. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मैमोग्राम अबव द एज ऑफ 40 फॉर स्क्रीनिंग ही यूज होता है, क्योंकि बिलो द एज ऑफ 40 ये डी टाइप ब्रेस्ट होने का ज्यादा चांसेस है. अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. यहाँ तक बात हो गई स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग हम किसकी करते हैं? पेशेंट्स की या नॉर्मल लोगों की? नॉर्मल लोग. ठीक है, who have no sign or symptom, उनको कोई अलामत नहीं. स्क्रीनिंग उनकी बनती है. अब आपके पास हमारे पास एक पेशेंट आया है जिसकी कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, वो किस तरह आएगा? पेशेंट को क्या फील होगा कि वो डॉक्टर के पास जाएगा? ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में क्या क्या अलामत हो सकती हैं? एनी गेसेस? ब्रेस्ट साइज चेंज हो. रेडनेस हो जाए, कलर चेंज. पेन इज नॉट अ वेरी कॉमन सिम्पटम. ये भी ना एक कंफ्यूजन है. Nipple discharge, yes, that's one of the not very common, but relatively aged thing. Axilla में pain is again maybe it can be, लेकिन not very common. ठीक है? ये हैं various presentations. नम की बात हो गई, skin changes की बात हो गई, asymmetry, nipple changes की बात हो गई, axillary lump की बात हो गई. अब कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस. नेक्स्ट स्वेलिंग. एक्सिला में लिम्फ नोड्स का आइडिया है सबको? ठीक है, वो लिम्फ नोड्स नेक में भी होते हैं. ठीक है, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि अपनी नेक की स्वेलिंग को नोट करके आते हैं, तो वो पता चलता है कि कैंसर यहाँ के लिम्फ नोड. बैक एक. There was a colleague, he was a surgeon, he is a surgeon. उसकी छोटी बहन को ब्रेस्ट कैंसर पता कैसे डायग्नोज हुआ? उनकी बैक एक नहीं सेटल होगी. She was in her late 20s. वर्कअप हुआ तो पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होके बैकबोन में गया. She didn't know that she had a breast lump. ठीक है, there was no other physical sign or symptom. And that is quite common. ये मैंने एक दो पेशेंट्स नहीं, इससे ज्यादा पेशेंट्स इस तरह के देखते हैं. ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? आर्म फ्रैक्चर से ये डिफरेंट कैसे? विदाउट एनी हल्का सा ट्रॉमा, जरा सी कुर्सी लगी है, जरा सा दरवाजा लगा है, थोड़ा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया. ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, तो वो दैट्स अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. होता क्या है कि वहां पे कैंसर फैला होता है, वहां से बोन्स वीक होती है और वो फ्रैक्चर हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस में तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वुड बी ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वुड बी ड्यू टू कि कैंसर बोन के उस पार्ट में. अच्छा, फिर बात करते हैं इमेज डिटेक्टर. इमेज डिटेक्टर मतलब स्क्रीनिंग के लिए गए तो पता चला कि देयर वाज अ लम्प. एक और है इंसिडेंटल फाइंडिंग. इंसिडेंटल फाइंडिंग क्या होता है? हमने किसी और वजह से सीटी स्कैन कराया चेस्ट का, लंग्स के लिए. ठीक है, उसकी रिपोर्ट में आ गया जी ब्रेस्ट में भी कोई लम्प. दिस इज आल्सो कॉमन प्रेजेंटेशन. ठीक है,
अच्छा, अब एक लंप का पता चल गया, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम। कुछ पेशेंट्स में हम एमआरआई भी करवाते हैं, नॉट वेरी कॉमनली बट यस इन सर्जन पेशेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है? विदाउट अ बायोप्सी अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स में सजेस्ट अ फाइब्रोएडेनोमा, इट इज नॉट डायग्नोस्टिक। ठीक है, अब इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। वी हैड अ पेशेंट लास्ट ईयर केम टू अस, शी वाज 26, उनका एक ब्रेस्ट लंप था, तो हमने उनको अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी के लिए भेजा। शी वेंट फॉर एन अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कभी किसी ने देखी है? बायराइट कैटेगरी 2 सजेस्टिव ऑफ फाइब्रोएडेनोमा, ठीक है? शी थॉट इट्स अ फाइब्रोएडेनोमा, उसका बायोप्सी नहीं करे। नेक्स्ट ईयर फिर जब वो हमारे पास आई है, it was cancer and it had spread. She presented back to us with stage 4 cancer. ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम फाइंडिंग्स आर नॉट कंक्लूसिव, बायोप्सी इज अ मस्ट। एंड बायोप्सी में अब FNSC इज ऑब्सोलीट, वी नीड अ कोर बायोप्सी। कोर बायोप्सी और FNSC में डिफरेंस पता है? नहीं? पूछ लो फिर। Simply the size of the sample. दोनों needle biopsy tests हैं। Core biopsy में it's just a larger, thicker needle, तो हमें ज़्यादा tissue sample मिलता है। और FNSC में it's a very small needle. तो simply sample size fit करो। ठीक है, फिर एक और मिलता है कि सुई लगाओ तो कैंसर फैल जाएगा। ये सुना है? हाँ। जब कुछ चीजें समझ नहीं आती ना, तो वही वो जो सर कह रहे थे, इधर उधर से पूछोगे तो आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेगी। ठीक है, अब मुझे बताएं, अगर हमने कपड़े सिलवाने हैं, हम अपने मोहल्लेदारों से मशवरा लेंगे क्या डिजाइन करवाएं? ठीक है, हमें कोई हेल्थ इशू है, हम जरूर मशवरा लेंगे। ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता, बायोप्सी करने से। अच्छा, ये वो सर बात कर रहे थे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये बहुत थोड़ी सी टाइप्स मैंने लिखी है, ठीक है? इस स्लाइड का बस ये मकसद है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट जस्ट वन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, और टाइप से ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस इफेक्ट होता है। अच्छा, अब हमें पता चल गया इस पेशेंट को कैंसर है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने ये देखना है कि बॉडी में कहीं फैला तो नहीं हुआ। बायोप्सी रिपोर्ट पे स्टेज का नहीं पता चलता, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट चाहिए, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट है। ट्रीटमेंट ऑप्शन, इस पर भी सर बात कर चुके हैं कि ट्यूमर बायोलॉजी एंड स्टेज हैव अ मेजर इंपैक्ट इन डिसाइडिंग द कोर्स। किस किस्म का कैंसर है और स्टेज क्या है, उससे ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कुछ पेशेंट्स में हमें सर्जरी पहले करनी होती है, कुछ में कीमोथेरेपी पहले होती है। ठीक है, हमने अपने डिपार्टमेंट का ऑडिट किया था पिछले 2 साल का। 85% ऑफ द पेशेंट्स दैट वी सॉ, उनको पहले कीमो दी गई, एंड सिर्फ 15% की हमने पहले सर्जरी। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, दैट वुड डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ ट्यूमर। हर पेशेंट को सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं दी जाती। ठीक है, एक चीज, सर्जरी इन ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में हम नहीं करते। Any guesses? कोई गेस नहीं? कभी सुना ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी ना हुई हो? अगर स्टेज 4 है, हम सर्जरी नहीं करेंगे क्योंकि सर्जरी का पेशेंट को फायदा नहीं होगा। सेकेंडली, या तो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं। सिर्फ ये 2 सिचुएशंस है जिसमें हम लोग नहीं करते। उन्हें किस नहीं करेंगे, स्टेज 4 में नहीं करेंगे। स्टेज 4 में अगर ब्रेस्ट कैंसर करेंगे लेकिन कीमो पहले करेंगे। It varies from patient to patient, लेकिन पूरी ब्रेस्ट रिमूव करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अगेन जो हमारा ऑडिट था उसमें हमें पता चला कि 56% ऑफ द पेशेंट्स की ब्रेस्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व की।
ठीक है, so it's not necessary to remove the whole breast. और पूरी breast remove करने से कैंसर वापस नहीं आएगा, that is also wrong. ठीक है, अभी कुछ myths and misconceptions. Surgery is always the first step. No, majority of the times in our population, surgery is not the first step. And ये मैं ऐसा surgery है. Mastectomy has a better outcome than breast conservation? नहीं. Even that is not. ये बात डिस्कस होगी that if the ultrasound says it's benign, no biopsy is needed. No, we always need a biopsy. ये भी डिस्कस हो गया कि अल्ट्रासाउंड मैमोग्राम different kinds of information देते हैं. Then a patient presenting with a left breast lump will need imaging of only the left breast. अगर left breast में गिल्टी के साथ आया तो मैं सिर्फ left breast का अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम करवाऊंगी. दोनों का. ठीक है? FNAC negative आई है. Is that conclusive? अब नहीं. You cannot rely on FNAC results. अच्छा, एक और मिथ है कि हमने कीमोथेरेपी दी, गिल्टी गायब हो गई. सर्जरी फिर भी करना जरूरी है या नहीं? It's always necessary. ब्रेस्ट कैंसर में हम छोड़ नहीं सकते. देखिए, मैंने कुछ इमेजेस इसलिए डाले थे कि पता चल जाए, पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो जाए. ये पेशेंट आई थी लेफ्ट ब्रेस्ट लंप के साथ. ठीक है, ये लंप उनको नजर आ रहा है ना आप लोगों को? राइट साइड पे कुछ नजर आ रहा है? ठीक है, ये she didn't feel that. अगर इनका सिर्फ लेफ्ट साइड का हुआ होता तो हम ये वाला कैंसर मिस कर जाते. ठीक है, अच्छा, अब ये पेशेंट है, ये लेफ्ट ब्रेस्ट पेन के साथ आई थी. She was 61 years old. We got a mammogram and ultrasound done. ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट, ये छोटा सा. Is that clear? This was cancer. ठीक है, it was just 9 millimeters on the biopsy report final जब मैंने सर्जरी की. ठीक है, ये एक और गिल्टी है, ये टर्न आउट टू बी benign. तो स्क्रीनिंग का ये फायदा है कि इतनी अर्ली डिटेक्शन हो जाए. Early stage में how is it treated and उसकी treatment है? इतनी अर्ली स्टेज पे द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सर्जरी. ठीक है, और सिर्फ ब्रेस्ट का ये पार्ट रिमूव हुआ था, दोनों गिल्टियों वाला. एंड एक्सरा में एक टेस्ट हुआ था. Surgery was performed. हाँ. ठीक है, अब फाइनल इनकी बायोप्सी रिपोर्ट में आया कि इट्स 9 मिलीमीटर्स एंड इसकी टाइप ऐसी है एंड शी इज 61 इयर्स ओल्ड. ठीक है, आमतौर पे हम कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं. 5 मिलीमीटर्स इज द कट ऑफ फॉर कीमोथेरेपी, ये ध्यान में रखें. ठीक है, कुछ टेस्ट्स हैं. ऑन्कोटाइप DX का किसी ने सुना होगा अगर फार्मास्यूटिकल से है कोई? अच्छा, ठीक है, आई वोंट गो इनटू दैट. देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ जेनेटिक टेस्ट जिसको करवा के हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को कीमो फोरगो कर सकते हैं या नहीं. लेकिन दैट्स इन वेरी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, मतलब द कंपनीज आउटसोर्स इट, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? 11,40,000. अच्छा, दिस इज अ पेशेंट, इनकी दोनों ब्रेस्ट रिमूव हुई, बट स्टिल द कैंसर इज बैक. अच्छा, इनकी पहले लेफ्ट साइड की सर्जरी हुई थी. शी वाज I don't remember where but she was treated but not in the hospital. हमारे पास ये आई थी तो this was the situation. पहले लेफ्ट ब्रेस्ट की सर्जरी हुई एंड पुरानी मैंने रिपोर्ट्स देखी तो उनके राइट साइड पे देयर वाज ऑलवेज अ लंप जो कि बेनाइन रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन उसकी बायोप्सी कभी नहीं हुई. इस सर्जरी के 1 साल बाद शी केम टू नो कि राइट साइड पे भी ब्रेस्ट कैंसर है. तो शी वेंट थ्रू द होल साइकिल ट्वाइस. उसके बाद रेड टेप जो भी है, ट्रीटमेंट डिले हुई, रेडियोथेरेपी डिले हुई. देयर आर आइडियल टाइम्स के सर्जरी के इतने अरसे तक कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जानी चाहिए, रेडियोथेरेपी स्टार्ट हो जानी चाहिए. अगर वो लेट हो तो फिर ये होता है. ठीक है, अब ये इनका स्कार है, यहाँ पे जख्म है, शी हैज कैंसर अगेन ओवर देयर. ठीक है, अच्छा, अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन तक आप लोगों ने मेरा एक मैसेज पहुंचा. ठीक है, learn how to do a clinical breast examination और जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट्स में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को इंक्लूड कर दिया जाए. ठीक है, और एक सबसे जरूरी बात,
पेशेंट किसी भी पर्पस के लिए आया ना हॉस्पिटल, एक थायराइड की सर्जरी कराने आई है, उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए शायद हमारी पॉपुलेशन इतना रेगुलरली ना आए, लेकिन जो फीमेल पेशेंट किसी भी वजह से हॉस्पिटल जा रही है उसका तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। And we do see those patients. अभी a month ago I saw a patient with advanced breast cancer. उसकी 1 साल पहले थायराइड की सर्जरी हुई, which means उस टाइम उसको डेफिनेटली लंप था। अगर वो उस टाइम पे पकड़ा जाता तो शायद डिफरेंट होगा, ठीक है। This was a picture. ये पेशेंट रेगुलरली अपने शुगर के डॉक्टर को, ब्लड प्रेशर के डॉक्टर को दिखाती रही है हर चीज के माँ बाप फॉर हर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद इनके बाजू में दर्द होना शुरू हुई, तो 4 महीने तक इनकी फिजियोथेरेपी हुई। क्या हुआ? ठीक है, 4 महीने तक फिजियोथेरेपी होती रही, पेन नहीं सही हुई, फिर बाजू में स्वेलिंग हो गई। उसके लिए पहले मेडिसिन इनको दी गई। डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये पेशेंट बार बार डॉक्टर्स के पास जाते थे, बाजू की स्वेलिंग के लिए उनको मेडिसिन देते रहे। फिर किसी के जहन में आया कि हम इनका सीटी स्कैन करा लेते हैं बाजू का। उसमें पता चला कि बाजू की वेन में क्लॉट, ठीक है, तो दे वर रेफर्ड टू अ वास्कुलर सर्जन। पहली दफा इस पेशेंट को वास्कुलर सर्जन ने फिजिकली देखा और हमारे पास पेशेंट, और पेशेंट को ये लग रहा था ये मेरी शुगर का जख्म है जो कि ठीक नहीं हो, ठीक है। 1 साल तक हर महीने 2 महीने बाद ये पेशेंट किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाती है। उससे पहले हर 6 माह बाद अपने शुगर और ब्लड प्रेशर के डॉक्टर के पास जाती है, ठीक है। तो इसमें द फॉल्स लाई ऑन आवर पार्ट, नॉट पेशेंट, ठीक है। इसलिए एनी फीमेल पेशेंट कम्स टू अ हॉस्पिटल फॉर एनी कंप्लेंट, उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। दैट वाज द लास्ट मैसेज फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इजाज नहीं है, डॉक्टर साहबा ने बहुत, डॉक्टर अफसा ने अच्छी तरीके से कैंसर की अवेयरनेस को और एक बहुत ही मैं कहती हूँ कि क्लियर वे में बताया है, मैसेज को कन्वे किया है। So I am very thankful to organizers who have selected me for this esteemed role and selected me for this initiative. और मैं जो strong advocate हूँ empowerment of women की, मेरा मैसेज एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यही है कि हम अपने उन फीमेल्स को जो अपने मैसेज कन्वे नहीं कर सकती, जो हेजिटेट होती हैं कि भला हम कैसे किसी को बताएंगे, क्या हमें कोई डिवोर्स इस तरह की कोई हेजिटेशन है, क्या हमें हमारा मुआशरा तस्लीम करेगा इसके बगैर कि नहीं। ये तमाम बैरियर्स जो कि आज भी बहुत से इलाकों में, हमारे गांव में और रूरल एरिया में मौजूद हैं, और वो डॉक्टर्स के पास इस हेजिटेशन से नहीं आती कि हमारा घर खराब हो जाएगा, हम भला ये बात कैसे एक मेड डॉक्टर को करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा एंड ओपन कन्वर्सेशन फीमेल्स की होनी चाहिए इस एरा में, जहाँ मेरे सामने एक इंतहाई क्वालिफाइड, इंतहाई वेल एस्टेब्लिश्ड एंड बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत ही मैं कहती हूँ कि आजकल के ज़माने में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का ज़माना है। तो हमें चाहिए कि इस स्टिग्मा को ब्रेक करें, अपनी बात कन्वे करें और क्लियरली करें, ताकि हम अपनी बहनों, माँओं और हमसे रिलेटेड जो भी अजीज़ोकार हैं हम उनको बचा सकें। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग, और ये हम लोगों की जुबानें हैं, ये जो फीमेल्स हमारे सामने बैठी हुई हैं ये हमारी जुबानें हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जेम्स हैं और हम लोगों को इस तरह के सेमिनार्स रिपीटेडली करने चाहिए ताकि ये अवेयरनेस रूरल एरिया में और हर जगह पे। और थैंक्स टू ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, और बहुत ज़बरदस्त है सब कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की टीम के, एंड थैंक यू सो मच फॉर द हैविंग मी। वेट करना है, ऐसे देखना है सामने।
चलो रेडी, देखेंगे सामने, इस कैमरे में देखना। University of Lahore, and I will be telling you all about how nutrition is important in breast cancer prevention. I'm not talking about the cure, but the prevention. So सबसे पहले अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो एवरीवन नोस कि बहुत ज़्यादा लीडिंग कॉज जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का जेनेटिक है. It has three रिस्क फैक्टर, जिसमें एक जेनेटिक फैक्टर आ जाता है जिसमें आपकी जीन म्यूटेशन हो जाती है. सेकेंडली आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से जो है आप अपना ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं. इफ यू आर गोइंग टू मेंटेन योर हेल्थ देन डेफिनेटली यू विल बी लिविंग अ वेरी हेल्थियर लाइफ, और अगर नहीं तो देन डेफिनेटली यू विल बी सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज. सो परहेज इलाज से बेहतर है, ये हम सब ने सुना भी है, हमें सबने बताया भी है. तो परहेज जो है इट्स नॉट ऑल अबाउट द डाइट बट ऑल्सो योर फिजिकल एक्टिविटी एज वेल, क्योंकि जहाँ पर 70% तक आपकी डाइट जो है वो रोल प्ले कर रही होती है, डेफिनेटली 30% तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Now the third risk factor is your hormonal imbalance, जो कि आजकल स्पेसिफिकली बच्चियों में PCOS और PCOD की शक्ल में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है. This is something that leads you to eventually breast cancer. There is no specific reporting, लेकिन somehow क्योंकि आपके hormones imbalance हो जाते हैं तो you are definitely at risk of catching breast cancer. Now why nutrition is actually important. सबसे पहले अच्छी न्यूट्रिशन आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेगी तो हमारा थर्ड वाला रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगा. इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी बॉडी में कम से कम होगी. नॉर्मली हम लोग इतनी ज़्यादा शुगर इनटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. हमारा ऑर्गन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें से सफ़र करना पड़ता है. इम्यून फंक्शन जो है वो आपका माल फंक्शन हो जाता है, इम्यूनिटी प्रॉपर्ली काम नहीं करती. अभी स्पेसिफिकली आप लोगों को इम्यूनिटी के बारे में तब पता लगा था जब कोविड आया था. तो अनटिल अनलेस हम किसी बीमारी से सफर नहीं करते, हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होता. तो मेक श्योर कि आप लोग बहुत बेसिक चीज़ें जैसे अपना लाइफस्टाइल, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो मेक श्योर कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी ऐड करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, बिकॉज बाय द वेरी एंड ऑफ द डे आपकी जो इम्यूनिटी है उसमें फाइट करना है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज. द फोर्थ थिंग इज कि आपका बॉडी वेट, आपको आपका आइडियल बॉडी वेट पता होना चाहिए. और जब तक आप अपने आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करके रखते हैं, इट मीन्स दैट योर ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग इज स्ट्रेस फ्री. जब स्ट्रेस फ्री वर्किंग होती है तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी गोइंग गुड. लेकिन जहाँ पे ऑर्गन स्ट्रेस आता है, आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है और वर्कलोड बढ़ जाता है ऑर्गन्स के ऊपर, डेफिनेटली विल लीड टू एनी ऑफ द डिजीज. अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं जब आपकी न्यूट्रिशन खराब होती है? कैंसर रिस्क इंक्रीज हो जाता है. इसके अलावा आपकी जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ब्रेस्ट फ्रॉम एनी ऑफ द कैंसरियस डिजीज और आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट डिले होगा. डाइट कैन नॉट ट्रीट एनी कैंसर बट इट कैन डिले अगर आपकी अच्छी डाइट नहीं है तो इट कैन डिले द प्रोसेस ऑफ योर रिकवरी. तो डाइट और लाइफस्टाइल आपकी दोनों चीजें अच्छी होंगी तो रिकवरी डिले नहीं होगी, आपकी रिकवरी पहले से जो है ना बेहतर हो जाएगी. इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी. क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? आपका जो दिल कर रहा है वो आप अच्छे से खा सके, आपका जहाँ दिल कर रहा है आप जा सके, आपका जैसे दिल कर रहा है आप वैसे अपनी बॉडी को यूज कर सके. दिस इज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. लेकिन व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, आपका कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, बीमारी की वजह से यू कैन नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, यू कैन नॉट गो फॉर द ट्रिप्स और एनी एडवेंचर. ओके, तो क्या होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस चीज से कम हो जाती है. तो मेक श्योर कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएं. अब यहाँ पे जो बेसिक प्रिवेंशन होती हैं, न्यूट्रिशनल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, वो सिर्फ इतनी ही हैं कि आपने अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन करनी है,
और इसके अलावा जो आपकी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल योर पैकेज्ड फूड एंड कोलाज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स वगैरह, उनको आपने लिमिटेड अमाउंट में लेना है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप शुगर इंटेक करेंगे आपका उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में इंक्रीज होगा और स्ट्रेस इंक्रीज होगा और डेफिनेटली दिस विल लीड यू टू अ वेरी बैड हेल्थ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी. Now, if I'm going to talk about the roles of potential protective roles of nutrients, तो सबसे पहले हमारा आता है फाइटोएस्ट्रोजन जो कि हमें सोय में मिलता है. What it will do is कि ये आपकी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा and it will lead you to have a very better life. आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, इसके अलावा आपकी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन बॉडी से कम होगी. एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी एंड ई और इसके अलावा सेलेनियम वगैरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेंगे और टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प आउट करेंगे, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को अच्छा करेंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर्ली योर विटामिन्स एंड मिनरल्स, डेफिनेटली दिस विल लीड यू टू अ वेरी बैड रिजल्ट. यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा हुआ है क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स, जिसमें ब्रोकली, केल और कैबेज वगैरह आता है. अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं. वेजिटेबल्स को जब आप कुक कर लेते हैं तो उनका क्रंच जो है वो खत्म हो जाता है. अब यहाँ पे आपकी जितनी भी क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स होती हैं उसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं. बट हैपन टू ग्लूकोसाइनोलेट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बट वेजिटेबल्स में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जब आप इसको च्यू करते हैं या इसको काटते हैं तो माइलोजिनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और सल्फोनेट को ये एक्टिव करता है, व्हिच इज एक्चुअली एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपका ओवरऑल इम्यूनिटी बिल्ड करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, टॉक्सिन्स को हटाता है और इसके अलावा आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है. तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर. एंटी कैंसरियस भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है. अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे गोल्स होने चाहिए कि हमने इम्यून फंक्शन को, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो इम्यून फंक्शन को हमने सपोर्ट करना है, उसके साइड इफेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं उनको मैनेज करना है, जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ गेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करनी है और इसके अलावा मैल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि व्हेनेवर यू आर कैंसर ट्रीटमेंट तो आपके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है. तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा न्यूट्रिएंट लॉस उस तरीके से ना हो. एंड विच न्यूट्रिएंट इज वेरी मच लॉस ड्यूरिंग द ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इज प्रोटीन. तो मेक श्योर कि आपकी प्रोटीन इनटेक इतनी अच्छी हो कि आपकी इम्यूनिटी भी, प्रोटीन इज द की, प्रोटीन इज द की टू क्रिएट योर इम्यूनिटी. आपका मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपकी जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनमें एज अ को फैक्टर काम करती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोटीन ला रही ताकि आपकी माल न्यूट्रिशन जो है वो दूर हो सके. माल न्यूट्रिशन कैन ईदर बी अंडरवेट और ओवरवेट, एवरीवन नोस, बट यहाँ पर हमारी मसल लॉस होना शुरू हो जाता है तो इट विल बी ऑन द अंडरवेट साइड. कॉमन चैलेंजेस हमें जो ट्रीटमेंट के दौरान आते हैं वो वॉमिटिंग और नॉसिया वगैरह होते हैं. इसके अलावा हमारी एपेटाइट कम होती है और डायरिया वगैरह भी अक्सर फेस करने को मिलता है. नाउ अगेन हम लोगों ने स्पेशल कंसीडरेशन जो ट्रीटमेंट में देखी थी वो हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोटीन इनटेक आपने अपनी ज़्यादा रखी है. इसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस इज मैंडेटरी. आपकी सप्लीमेंटेशन भी साथ साथ बहुत जरूरी होती है क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट लॉस अगेन चल रहा होता है. और इसके अलावा आपकी हाइजीन भी बहुत जरूरी होती है. अंडर अनलेस यू आर नॉट हैविंग अ हाइजीनिक फूड आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर रहेगी. नाउ गोल्स क्या होने चाहिए आपकी रिकवरी में गोल्स ये होने चाहिए कि आपका हेल्दी वेट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए और इसके अलावा आपको अपना ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है ना उसको मेंटेनेंस भी रखनी है उसके अंदर. अंटिल अनलेस आप मेंटेनेंस नहीं रखेंगे डेफिनेटली आपको रिकरेंस के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के. अब हम थोड़े से मैथ्स देख लेते हैं. शुगर फ्री कैंसर. सो नॉर्मली जो है ना सब सेल्स को शुगर की जरूरत होती है वर्किंग के लिए क्योंकि बाय द वेरी एंड ऑफ द डे आवर बॉडी नीड्स एनी मॉलिक्यूल्स टू वर्क, राइट. तो शुगर्स जो है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कॉम्प्लेक्स शुगर सॉल्ट्स की तरफ जाएं रादर देन गोइंग फॉर द सिंपलर वन. सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आपके सेल्स को प्रॉपर्ली एनर्जी भी मिलेगी एंड इट विल नॉट मेक थिंग्स वर्स.
इसके अलावा soy increases breast cancer risk, so that is definitely a myth, क्योंकि फैक्ट क्या है कि soy का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा सेफर है. It has the anti-inflammatory properties. Supplements cure cancer. Supplements can never cure cancer. Only medication can cure breast cancer. Supplements साइड सपोर्ट होती हैं और सिर्फ आपको रिकवरी में हेल्प आउट करती हैं. It can never treat any cancer or anything at all. डेयरी कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर. तो डेयरी जो है वो मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता. इफ यू आर गोइंग टू टेक द लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, सो इट विल नेवर मेक्स द चांसेस टू ब्रेस्ट कैंसर गो वर्स. अब डाइटिशियंस का रोल क्या होता है? डाइटिशियंस का रोल ये होता है कि आप मेरे को स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट दिया जाए, आपको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज प्रोवाइड की जाए, आपके वेट चेंजेस जो हो रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए और इमोशनल चेंजेस भी आपके एड्रेस किए जाए, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी हेल्थी रिकवरी. प्रैक्टिकल टिप्स यही है कि आप पेशेंट के लिए जो है मील प्लान्स चूज करते हैं और इसके अलावा सप्लीमेंटेशन सजेस्ट करते हैं. जितना ज़्यादा नॉलेज आप अपने पेशेंट को देंगे उतना ज़्यादा आपकी और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान होगा. So this is for today's presentation. I would like you all to if you guys have any questions, you can definitely ask me. मेरी तरफ से यहाँ तक की presentation. Thank you so much. To present few words regarding breast cancer awareness. Everyone, please give her a huge round of applause. Assalamualaikum everyone, and thank you so much for having us. First of all, I would like to thank all the organizers for conducting such an insightful conference. जहाँ पर मेरी कुलीग ने बात की है एंटीऑक्सीडेंट्स की और डाइट फॉलो जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट और एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट पे जिन्होंने बात की है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा प्रोटीन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करूँ. जब हमने स्क्रीनिंग करवा ली, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो ट्रीटमेंट एंड द डाइट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. ट्रीटमेंट जब चल रहा है उसके साथ आपने अपनी डाइट भी उतनी ही अच्छी लेनी है ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट और आपकी रिकवरी का प्रोसेस है उसको इंक्रीज किया जा सके. मोस्टली आप जब भी इन्फेक्शन कैच करेंगे या इवन आप हॉस्पिटल स्टे में भी देखेंगे, आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना CBC या अपने LFTs RFTs करवाएं तो साथ में एल्बुमिन के लेवल्स होते हैं. एल्बुमिन जो है हमारी बॉडी के प्रॉपर प्रोटीन लेवल्स को सजेस्ट कर रहा होता है कि अगर आपके एल्बुमिन लेवल्स बॉडी में कम हैं, इट मीन्स कि आपके जो बॉडी के प्रोटीन स्टोर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे हैं, आपका जो मसल मास है वो कम हो रहा है. आम जुबान में से कहते हैं बॉडी ढलकना शुरू हो गई है, या आपकी जो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी इतनी ज़्यादा जरूरी है. फ्रॉम हेड टू टो वी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. आप खास तौर पे जो कैंसर के ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, जिन घरों में मोस्टली हम लोग जब भी किसी डिजीज को डेवलप करते हैं तो हमारा डाइट से मेजरली फोकस हट जाता है. डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप जो है फुल ऑफ प्रोटीन डाइट लें, लेकिन मे बी वो पॉलीफार्मेसी की वजह से खाने का दिल नहीं करता, नौजिया होता है या वॉमिटिंग. लेकिन आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है और प्रोटीन के ऊपर खास ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि प्रोटीन जो है अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वेदर कीमोथेरेपी और रेडिएशन और सर्जरी, आफ्टर द सर्जरी जो हमारी प्रोटीन नीड्स है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती हैं. अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूँ तो जो हमारी प्रोटीन नीड्स है बॉडी की दैट इज 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट. बट अगर हम हीलिंग प्रोसेस में बात करें आफ्टर सर्जरी और विद इन द कैंसर ट्रीटमेंट तो वो हमारी जो नीड्स है वो बढ़ जाती है 0.8 ग्राम से, वो बढ़ के 1 to 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाती है. तो कोशिश करें अगर आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट है तो जो हमारी डाइट है दैट वो हैंड इन हैंड विद ट्रीटमेंट, आपकी डाइट बेहतर होगी तो आपका जो रिकवरी का प्रोसेस है आप उसको बेहतर बना सकते हैं. दूसरा, जिस तरह मेरी कलीग ने बात की एंटीऑक्सीडेंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो मेजरली हमारे पास क्या काम करते हैं, वो फूड जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है वो बॉडी के अंदर मौजूद सेल डैमेज को रिकवर करने में हेल्प आउट करता है. वो मेजरली हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है जिनमें हमारे पास विटामिन ई है, मेजरली टोकोफेरॉल्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, बीटा कैरोटिनॉइड्स हैं, हमारे पास कैरेट्स हैं, टोमेटोज हैं. हमारे पास ये जो मेजर सोर्सेज हैं विटामिन बी के और विटामिन ई के दैट आर एंटीऑक्सीडेंट्स. इनकी सप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं ताकि आपका जो रिकवरी का प्रोसेस है उसको बूस्ट मिल सके. Thank you so much. It was all from my side.
so much. Assalamualaikum. I thank the Imperial Pharmaceutical Society, University of Lahore, and especially Dr. Zishan Akbar for organizing this insightful and knowledgeable discussion session on breast cancer awareness. I would make it very precise. मैं social sciences से ताल्लुक रखती हूँ, and I would like to discuss and take up this topic, on a societal level. I would like to discuss it on a societal level. A lot of scientific information has been imparted, but the real problem also lies. We cannot deny the fact that this problem is encountered not only by women, of Pakistan or throughout the world, but also men as well. So we have to take a very inclusive approach here, not an exclusive approach. And here we want, men to play an equal role in empowering women, because, when I talk about social sciences, I always say, this is my take, that women empowerment is never possible without the help and support of males. I believe that if some women are empowered, it is because of some men who believe in feminism and women empowerment. Right? So all those women, especially in the remote areas of Pakistan and the underserved areas of Pakistan, who are suffering from this disease, they should be empowered, they should be given hope, and especially, they should be told that there is no stigma attached to this particular disease and it can be cured. And support of their male counterparts or male family members, it is only with that support that they can come forward and get this disease treated, and not take it as a taboo or something which is very deadly. You see, so as a society, inclusively, both male and women have to, make sure कि वो एक रोल ऐसा अदा करे कि इस disease को इतना बड़ा taboo, इतनी deadly disease ना consider की जाए, बल्कि एक hope दी जाए that this can be cured. Unfortunately, I was looking at the report and I saw that, I was thinking that the reports in far-flung areas of KPK, let's say FATA, even Balochistan, even in South Punjab, so to speak, you see, all those women who are suffering through this disease, they never get reported. They even hardly go to hospitals for their very basic, diseases, right? They are told that it is not important, there are other matters that need to be dealt with, and, this matter cannot be, or ये एक ऐसी disease है that this will only lead to death. See, so women in those remote areas and underserved areas should be, given preference and prioritized. And also, I also believe that, financial problems, yes, financial constraints are always there when it comes to a disease like cancer. So mass awareness regarding, fundraising should be, should be important. I believe international organizations should be, should take part. I mean, men especially, because we see that we are, in a male-dominated society, and some, there are some women who are also very empowered and they have a voice. Unfortunately, only 20 or 30% of women in Pakistan have a very strong voice. Like that can reach up to international organizations and for fundraising and all that. So I believe inclusively everyone, be it a male or a woman, they should raise their voice. They should organize funds, especially for these underserved and remote areas of Pakistan, so that those women who don't have any voice, जो hospitals का उनके पास access नहीं है, funds नहीं है, family support नहीं है, they should be helped. And उनका भी treatment जो है, उनको भी hope दी जाए, और उनका भी treatment जो है बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाए. Thank you so much. It was quite insightful discussion session, and I personally learned a lot, and especially talking about the technical and scientific knowledge. Yes, it was very, very knowledgeable and very deep knowledge was important. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for joining us and for your words. Now it's time that I welcome Dr. Zishan Akbar, patron and founder UL IPS, to please come to the stage and extend a heartfelt vote of thanks and present our distinguished guests, esteemed speakers, and collaborating societies. मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. सबसे पहले मैं तमाम तर जो हमारे कीनोट स्पीकर्स
उनका तहे दिल से मशहूर हूँ। डॉक्टर मसूद साहब आए, डॉक्टर हफ्सा हैं, डॉक्टर अमरीन हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू all the three keynote speakers. At the same time, I'm very much thankful to all the guests of honors sitting here right now. Dr. Miss Mariha हैं, Miss Aisha Akhtar हैं, Miss Aisha Anwar हैं, Miss Aisha Mubashir हैं, Dr. Ramla हैं, Miss Shazia and many more. जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो कोलैबोरेटिव बॉडीज़ हैं, द सोसाइटी स्टूडेंट फोकस, मैं स्टूडेंट फोकस का तहे दिल से मशहूर हूँ। न्यूट्रिशनल सोसाइटी जो है हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से उनका मैं मशहूर हूँ। शौकत खान की कोलैबोरेशन थी। इन सब कोलैबोरेटिव बॉडीज़ का मैं कलेक्टिवली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन द लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट लीस्ट, बहुत ज़्यादा सताइश, बहुत ज़्यादा तारीफ, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और एडमायरेशन के लिए जो मेरी टीम है, your IPS under the leadership of Dr. Muhammad Abdullah Mirza and of audience, media team, sound team, every team. Sir, I'm very much thankful to all of you people. तमाम बच्चों ने under the leadership of Muhammad Abdullah Mirza बहुत ज़बरदस्त काम किया। Right now it's not possible, मैं थके हुए चेहरे देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आप लोग कितना थक चुके हैं एंड एंड तक आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिला के। मैं तमाम तरह सोसाइटीज़ का, IPS का, हमारी इंपीरियल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, बेलारूस गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स, हॉस्पिटल टीम, मेरी हॉस्पिटल टीम जो बैठी है, मेरी IT टीम जो बैठी है, मैं आप सबका तहे दिल से मशहूर हूँ। मेरी स्टेज मैनेजमेंट टीम बैठी है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी सिक्योरिटी टीम में जितने भी लोग हैं, नाम लेना पॉसिबल नहीं, बट थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस टिल द लास्ट मोमेंट। थैंक यू सो मच। And the most important thing, congratulations all of you. This was the mega event. This was the beautiful event and one of the big success. माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल फिर इसी तरह का एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन हम सब मिलके करवाना चाहेंगे बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर्स का एक दफ़ा फिर तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। सो मच सर। तो आज के सेशन से हमने जो कुछ भी सीखा उससे हम इस बात का अहद करते हैं कि हम अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को ये एहसास दिलाएंगे कि उनकी सेहत उनकी ताकत है। खामोशी नहीं, आगाही जरूरी है। ये वो वक्त है कि हम खौफ को हटाकर उम्मीद अपनाएं। ये वो वक्त है हम खामोशी को छोड़कर आगाही अपनाएं, क्योंकि जो जानता है वो बच सकता है। आगाही वो पहला कदम है जो जिंदगी की तरफ ले जाता है। Okay, so now as a symbol of appreciation, I would like to invite on stage. Stand unafraid, through the tears and pain we rise again. Together we'll break these chains. We are the fighters, we are the brave, we are the brave. And even when it feels too hard to breathe, I know that hope is here right next to me. In every heart, in every hand, we'll stand together, we'll take a stand. We are the fighters, we are the brave. In the face of fear we stand unafraid. Through the tears and pain we rise again. Together we'll break these chains. We are the fighters, we are the brave.